Hello everyone, welcome. Today let's practice physics numericals of chapter Motion in a Straight Line of class 11. So let's start with the first question. A driver of car takes 0.20 seconds to apply the brakes after he sees an obstruction at a distance of 25 meters from him. If he is driving car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6 meter per second square, predict whether he will avert collision or not. So in this question, it is given that the reaction time of driver is 0.20 second. It means that after seeing an obstruction which is at a distance of 25 meter from the driver, from the car, the driver applies the brakes, and for applying the brakes the time that he takes is, that will be the reaction time, and that is equal to 0.2 second. Now, during the time of reaction, the car continues to move with uniform speed of 54 km per hour. Speed of car that is given in this question is 54 km per hour, and we can convert this into meter per second by multiplying by 5 by 80, and then the speed of car is 15 meter per second. Now the distance covered by car in time 0.2 second, which is the reaction time of the driver, in that time, during that time, the distance covered by car is equal to 3 meter. That we can find out by multiplying speed with the time 0.2, and that distance is equal to 3 meter. Now, taking motion of car when brake is applied and its velocity becomes 0. जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और उसके बाद थोड़ी देर बाद कार रुक गया, और उस कार की स्पीड में जो डिसलेरेशन आया वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस समय भी कार कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है. अब हम लोग वो निकालेंगे. इनिशियल वेलोसिटी जो कार का है जब ब्रेक लगाया गया तब 15 मीटर पर सेकेंड है. डिसलेरेशन जो कार में आया ब्रेक लगाने के बाद वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. It is given in the question. Now finally the car stops, so final velocity is v is equal to 0. We can use equation v square is equal to u square plus 2as, and by putting the values we can find out value of s, which is the distance traveled by car after applying the brakes, and that we can find out to be equal to 18.75 meter. Now, total distance traveled by car, the distance that the car travels during the reaction time and the distance that the car travels after applying the brakes, if we add both the distance, we get 21.75 meter. But the obstruction is at a distance of 25 meter from him. So, as the distance traveled by car is less than 25 meter, so the driver will avert the collision. ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो 25 मीटर पर है, और जो डिस्टेंस कार ट्रैवल कर रहा है रिएक्शन टाइम के दौरान और जब ब्रेक लगाया उसके बाद वो 21.75 मीटर ही आ रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन जितनी दूर है उससे कम है. इसीलिए ड्राइवर जो है वो कोलिजन से कार को बचा पाएगा. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Two buses A and B are at positions 60 meter and 160 meter from the origin at time t is equal to 0. So it is given in the question that initially the position of bus A is 60 meter and position of bus B is 160 meter from the origin. They start moving in the same direction. Both the bus A and B are moving in the same direction simultaneously with uniform speed 54 km per hour and 36 km per hour. So it is given in the question that the speed of A is 54 km per hour, which we can convert it into meter per second, and it will be equal to 15 meter per second. And then speed of B, it is also given in the question, that is 36 km per hour. After converting it into meter per second, we will get 10 meter per second. Determine the time and position at which A overtaken B. So in this question दो बस है, दोनों का पोजीशन इनिशियली
60 मीटर है और 160 मीटर है फ्रॉम द ओरिजिन, दोनों का स्पीड क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम लोग को पता करना है कि जब बस ए बी को ओवरटेक करता है उस समय क्या टाइम होगा और क्या पोजीशन होगा। तो हम लोग पता करते हैं। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर बस ए। सो फॉर बस ए पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी टाइम टी पे पोजीशन ऑफ ए क्या होगा। इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 है तब तो पोजीशन 60 मीटर है। अब बस 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो टाइम t में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 15t होगा। सो फाइनली द पोजीशन ऑफ बस a एट एनी इंस्टेंट t विल बी इक्वल टू 60 प्लस 15t। Similarly for bus B also we can find out the position at any instant of time t, क्योंकि बस B जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, तो टाइम t में मल्टीप्लाइंग स्पीड विद टाइम वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस B during time t and that is equal to 10t। इनिशियली बस B टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 160 मीटर दूर है ओरिजिन से। सो फाइनली द पोजीशन ऑफ b एट एनी इंस्टेंट t विल बी इक्वल टू 160 प्लस 10t। नाउ व्हेन बस a ओवरटेक्स b, जब बस a b को ओवरटेक कर रहा है उस समय पोजीशन जो बस a का होगा वो इक्वल होगा पोजीशन जो बस b का है। और this way we can write 60 plus 15t is equal to 160 plus 10t, and by solving this equation we can find out the value of t to be equal to 20 second। जब पोजीशन a का b के इक्वल हुआ, दोनों के इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करके हम लोग ने टाइम निकाल लिया जो 20 सेकेंड आया। अब इस टाइम को जब हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वी विल बी एबल टू फाइंड द पोजीशन ऑफ a which is 360 meter, and this is the time and position at which A overtaken B। Okay, so next question. In this question, a man 16 meter behind the door of a train when it starts moving with an acceleration a is equal to 2 meter per second square। एक मैन है जो ट्रेन से 16 मीटर बिहाइंड है, पीछे है, और जब ट्रेन स्टार्ट होता है तब उसका एक्सेलरेशन जो ट्रेन का है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। द मैन रन्स विथ अ मैक्सिमम कॉन्स्टेंट स्पीड टू गेट इन टू द ट्रेन। अब मैन को ट्रेन पे चढ़ना है और उसका मैक्सिमम कांस्टेंट जो भी मैक्सिमम स्पीड होता है उस स्पीड से वो दौड़ता है और उसको ट्रेन पे चढ़ना है। हाउ फार डज ही हैज़ टू रन एंड आफ्टर व्हाट टाइम डज ही गेट इनटू द ट्रेन। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में पता करना है कि कितने दूर वो दौड़ेगा और कितना समय लगेगा उसे इस ट्रेन में चढ़ने में। What is his maximum constant speed, और हम लोग को यह भी पता करना है कि उसका maximum constant speed कितना होगा। So first of all, what is given in the question? It is given that a man is 16 meter behind the door of a train। एक ट्रेन से एक मैन जो है 16 मीटर की दूरी पर है। ट्रेन का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लेते हैं कि v be the maximum constant speed of the man। Now the man will get into the train after time t when his velocity becomes equal to the velocity of train। मैन तभी उस ट्रेन के ऊपर चढ़ पाएगा जब उसका वेलोसिटी जो है वो ट्रेन के वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा जिस वेलोसिटी पे जो वेलोसिटी ट्रेन के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा और वो ट्रेन पे चढ़ पाएगा। सो इन दिस केस इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 0, क्योंकि दिया हुआ है कि ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meter per second square। So initially it is at rest, so initial velocity is 0। Finally let us suppose that v is the velocity attained by the train। Acceleration is given 2 meter per second square, so we know v is equal to u plus at। Putting the values we can find out v is equal to 2t। So v is equal to 2t is the velocity of man and this is the velocity of train also। Distance moved by train in time t।
अब हम लोग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस फॉर्मूला को यूज़ करके, क्योंकि u तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ट्रेन का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और t हम लोग लेट कर रहे हैं कोई टाइम है, तो उस जितना t टाइम में जो डिस्टेंस मूव्ड होगा बाय ट्रेन दैट विल बी इक्वल टू t स्क्वायर. Similarly, distance moved by man in time t we can find out, because speed of man is equal to velocity of man is equal to velocity of train, which we found that it is equal to 2t. So when we multiply 2t with t, we get 2t square, and this is the distance moved by man in time t. Now, man will get into the train when distance moved by train is equal to distance moved by man. Similarly, जैसे velocity man का velocity of train के बराबर होगा तभी वो ट्रेन पर चढ़ पाएगा, उसी तरह distance जो ट्रेन मूव कर रहा है उतना ही distance अगर man भी मूव करेगा तब वो ट्रेन में चढ़ पाएगा. So, equating t square, which is the distance moved by train in time t, this t square we equate with 2t square plus 16. क्योंकि मैन जो है वो ट्रेन के डोर से 16 मीटर बिहाइंड है, सो डिस्टेंस में मूव्ड बाय द मैन इन टाइम t जो हम लोग 2t स्क्वायर के बराबर निकाले उसमें हम लोग 16 प्लस करेंगे, तब वो टोटल डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रेन में चढ़ने के लिए वो निकलेगा, और वो होना चाहिए इक्वल t स्क्वायर के, जो हम लोग अभी निकाले कि वो है डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन इन टाइम t. So we will solve this equation and t is equal to 4 सेकेंड. तो 4 सेकेंड के समय लगेगा उस मैन को उस ट्रेन में चढ़ने के लिए, और उस समय जो डिस्टेंस मूव बाय मैन है वो 2t स्क्वायर के बराबर है. पुटिंग द वैल्यूज वी गेट डिस्टेंस मूव बाय मैन इन टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वल टू 32 मीटर. ऑल्सो मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड जो है वो v के बराबर होगा, और v जो है 2t के बराबर है. हम लोग ने यहाँ पे निकाला कि v 2t के बराबर है. सो पुटिंग t इज इक्वल टू 4 सेकेंड we get maximum constant speed equal to 8 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम 4 सेकेंड लगेगा, डिस्टेंस 32 मीटर मूव करना पड़ेगा, और मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड जो मैन का होना चाहिए ट्रेन में चढ़ने के लिए वो 8 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A tennis ball is dropped on to the floor from a height of 4 meter. It rebounds to height of 3 meter. If the ball was in contact with the floor for 0.01 second, what was its average acceleration during contact? तो इस क्वेश्चन में एक टेनिस बॉल दिया हुआ है जो एक हाइट h1 पर है जो 4 मीटर के बराबर है. फर्स्ट हाइट जो h1 है 4 मीटर, उसके बाद उसको ड्रॉप किया गया. ड्रॉप करने के बाद वो फ्लोर से टकराने के बाद रीबाउंड हुआ, और फिर जो सेकेंड हाइट जो अटेन किया वो टेनिस बॉल वो 3 मीटर के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है. और जो पॉइंट जब टाइम ऑफ कांटेक्ट है, जब बॉल जो है वो फ्लोर को टच किया, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है वो 0.01 सेकेंड, ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हम लोग को ये पता करना है कि व्हाट वाज इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट के समय उसका कितना एवरेज एक्सेलरेशन होगा. तो let us suppose v1 be the velocity of the ball acting downwards before striking the floor. फ्लोर में टकराने से पहले जो बॉल का वेलोसिटी होगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो हम लोग v1 मान लेते हैं. Also let v2 be the velocity of the ball acting upwards. जब वो फ्लोर पे टकरा गया, अब वो बॉल ऊपर की तरफ रीबाउंड हुआ, उस केस में जो velocity of ball है acting in the upward direction just after striking the floor, उसको हम लोग ने v2 मान लिया. तो जब एवरेज एक्सीलरेशन हम लोग को निकालना है वो इक्वल होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो यहाँ पर हमको अगर v1 पता है, v2 पता है, तो उससे हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं. और टाइम ऑफ कांटेक्ट इट इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड. उससे डिवाइड करने पे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट निकाल सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में 2 केसेस हम लोग कंसिडर करेंगे. फर्स्ट केस,
व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट h1, जब वो फॉल हो टेनिस बॉल जो है वो हाइट h1 से फॉल हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हम लोग ने अभी सपोज किया कि v1 के बराबर है, एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेनिस बॉल गिर रहा है तो उसको हम लोग g के बराबर ले लेंगे, हाइट हम लोग h1 के बराबर लिए हैं जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 मीटर के बराबर है. पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, पुटिंग द वैल्यूज we will find out v1 to be equal to root under 2g h1. Similarly, we can consider the second case when body rebounds after striking the floor. अब फ्लोर पे टकराने के बाद टेनिस बॉल जो है वो रिबाउंड होता है और उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉल का वो तो v2 के बराबर होगा, जो हम लोग ने अभी सपोज किया कि v2 के बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ द बॉल एक्टिंग अपवर्ड्स इन द आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर. एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग -g के बराबर लेंगे, हाइट जो वो अटेन कर रहा है इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 3 मीटर. सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वी विल गेट v2 इज इक्वल टू रूट अंडर 2g h2. तो हम लोग को v1 भी पता चल गया और v2 भी पता चल गया. सो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग पता करेंगे v2 माइनस v1 से. अब यहाँ पर क्योंकि v2 जो है, जो बॉल फ्लोर पे टकराने के बाद जब ऊपर गया उसको अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो v1 जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो निगेटिव होगा एंड देन चेंज निकालना है तो वी विल राइट v2 माइनस एंड ब्रैकेट में माइनस v1 एंड फाइनली वी विल गेट v2 plus v1. Change in velocity will be equal to v2 plus v1, and when we divide it by t which is given in the question that is 0.01 second, we will be able to find the acceleration. We can put the values of g as 9.8, h2 height is given 3 meter, h1 height is given 4 meter. Putting all the values, the acceleration we will get 1652 meter per second square. So this is the average acceleration of the tennis ball during contact. Now next question. A parachutist bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 4 meter opens the parachute and decelerates at 2 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, how long is he in the air? At what height did he bail out from the plane? So इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक पैराशूटिस्ट है, वो एरोप्लेन से निकलता है और वो ड्रॉप होता है एक डिस्टेंस 40 मीटर. आफ्टर ड्रॉपिंग फॉर 40 मीटर ऑफ दिस हाइट ही ओपन्स द पैराशूट. जब उसने पैराशूट ओपन किया तब उसके स्पीड में डिसलरेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. अब हम लोग को इस क्वेश्चन में पता करना है कि जब वो ग्राउंड रीच करता है, जब स्पीड वो अच्छा दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. अब हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर, हम लोग को ये पता करना है कि वो एयर में कितने देर रहा, कितने टाइम तक रहा, और एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन. जब वह एरोप्लेन से निकला तब वो कितने हाइट पे था. So given in this question is height through which the parachutist has fallen before he opens the parachute. Parachute खोलने के पहले जो height parachutist fall हुआ that is equal to 40 meter. It is given in the question. Now deceleration of parachutist when he opens the parachute, it is also equal to 2 meter per second square which is given in the question. स्पीड ऑफ पैराशूटिस्ट व्हेन ही रीचेज द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को टच किया तब उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है. दीज 3 इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. लेट अस कंसिडर द फर्स्ट केस व्हेन द पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स फॉर द फर्स्ट 40 मीटर. जब पैराशूटिस्ट पहला 40 मीटर जब उसने पैराशूट को ओपन नहीं किया था, उस समय जब वो फॉल हो रहा है तब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन g के बराबर है, टाइम हम लोग सपोज कर लेते हैं कि t1 टाइम के लिए वो फॉल किया 40 मीटर की हाइट तक.
डिस्टेंस 40 मीटर है, फाइनल वेलोसिटी भी हम लोग सपोज कर लेते हैं कि उसका v है, तब वी कैन यूज दिस इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड पुटिंग द वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट v इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड. सो फाइनल वेलोसिटी जब पैराशूटिस्ट ड्रॉप एरोप्लेन से निकलने के बाद पैराशूट ओपन करने के पहले जब वो ड्रॉप करता है 40 मीटर के हाइट तक, उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 28 मीटर पर सेकेंड होगा. और इस समय अब इस v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें, फाइनल वेलोसिटी जो 28 अभी हम लोग ने निकाला, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 है, तब इन वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग वो टाइम भी निकाल सकते हैं जितने टाइम के लिए वो पैराशूटिस्ट ने पैराशूट को ओपन नहीं किया था और वो फॉल किया था 40 मीटर के हाइट से. तो वो टाइम पुटिंग द वैल्यूज वी विल बी एबल टू फाइंड आउट टू बी इक्वल टू 2.8 सेकेंड. Now the final velocity after the drop of 40 meter is the initial velocity for the rest of the fall. अब जब पैराशूटिस्ट ने पैराशूट को ओपन किया, उसके स्पीड में डिसलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उस समय जो फाइनल वेलोसिटी था इनिशियल केस का, वो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा. सेकेंड केस अगर हम लोग कंसिडर करें, व्हेन द पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स आफ्टर ही ओपन्स द पैराशूट. अब पैराशूट ओपन करने के बाद जब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग देखेंगे तो उस पैराशूटिस्ट का 28 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो हम लोग ने यहाँ पे निकाला. और एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि इट इज गिवन दैट इट इज डिसेलरेट्स. Final velocity 2 meter per second. It is also given in the question that the speed of parachutist when he reaches the ground is 2 meter per second. Now if we put the values अगेन, इस समय जो टाइम है उसको हम लोग T2 ले लेते हैं कि सेकेंड केस जब है, जब उसने पैराशूट ओपन कर लिया और वो फॉल हो रहा है, उस समय जो टाइम है उसको अगर हम लोग ने T2 एज्यूम कर लिया, तो वी कैन अगेन यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस 80. v फाइनल वेलोसिटी 2 गिवन इन द क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी इज 28 अभी हम लोग ने निकाला, डिसेलरेशन हो रहा है तो -2, और T2 टाइम हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं जो 13 सेकेंड आएगा. अब हम लोग को ये पता करना है कि टोटल टाइम जो पैराशूटिस्ट जो है वो एयर में रहा, तो इनिशियल पहला जब हम लोग केस निकाले उसमें T1 निकला 2.8 सेकेंड. सेकेंड केस जब पैराशूटिस्ट ने पैराशूट को ओपन कर दिया, तब उस केस का टाइम T2 निकला 13 सेकेंड. इन दोनों को ऐड करके 15.8 seconds will be the total time the parachutist is in the air. Now, height through which the parachutist has fallen during the second half of the fall. जब उसने पैराशूटिस्ट ने पैराशूट को ओपन कर दिया, अब वो कुछ हाइट तक फॉल हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. क्योंकि हम लोग को पता है कि फाइनल वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड है, डिसेलरेशन -2 है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग s निकाल लेंगे 195 मीटर. लेकिन पैराशूट ओपन करने के पहले भी वो 40 मीटर तक ड्रॉप हुआ था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिफोर ओपनिंग द पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर. सो टोटल हाइट एट विच द पैराशूटिस्ट बेल्ड आउट, वो हम लोग निकाल पाएंगे 40 मीटर को जब 195 मीटर से प्लस करेंगे, दैट इज 235 मीटर. तब दिस इज द टोटल हाइट एट विच द पैराशूटिस्ट बेल्ड आउट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.